सरांच्या म्हणजे दिले असं की आहे ना, मी आताच दुसरी क्लास 7:30 ला सोडले, म्हणून मी 7:45 ला स्टार्ट करेन. Okay. मम्मा दूसरा लाइट भी ऑन कर सकते हैं.
Okay. Yes. 18. Yeah.
Okay, so let's start. Am I audible, everyone? जल्दी से chat section पे बताओ जरा. Am I audible? चलो, very good. जिस किसी को भी प्रॉब्लम है साउंड में, काइंडली क्विट एंड रिजॉइन. Wait 1 minute. Fine. Fine. So today we'll start with the chapter sequence and series. Sequence and series. Right? So guys, इस चैप्टर में कुछ नोटेशंस हैं, there are some symbols जिसका मीनिंग आपको पहले पता होना चाहिए ना. I'll start with the very basic things. Right? So can anyone tell me what is the meaning of this T of n? The meaning of T of n is nth term, not last term. Last term could be anything. Last term could be 2n term, it could be rth term, it could be 2n minus 1 term. So it's the meaning of T of n is nth term. Very good. Of any series, yes. No, it doesn't matter whether what is the series. This symbol is valid for every series. तो ये बताओ मेरे को, यदि if I give you T of n as 5n square plus 4 और मैं आपसे पूछूं what is T of 2, तो कैसे करोगे? हाँ, वेरी गुड. आप इस n की प्लेस पे 2 रिप्लेस करोगे. You will plug in the value of 2 in this place n. So 5 2 square bracket plus 4. So 5 2 square is 4 plus 4 is equals to 24. Correct? Acha. In the similar manner, if I ask you what is T of n minus 1, then what will you do? You will replace now n plus 1. First you replace 2 in the place of n. Now you will replace what? N plus 1. So you will write 5 bracket n minus 1 whole square plus 4. This answer is acceptable. No, you don't need to simplify it. Fine. No, I'm asking T n minus 1. I'm not asking how it can come 9. The answer would be in terms of T of n 9 minus 1. No, I'm asking T of n minus 1. I'm not asking T n minus T1. यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, करेक्ट ना? अच्छा, तो गाइस इसी से मिलता जुलता हुआ है ना, सिमिलर टू द एक मिसी से मिलता जुलता हुआ है ना, इसी से मिलता जुलता हुआ एक और सिंबल है एस ऑफ एन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस ऑफ एन? इसका मतलब क्या होता है? सम ऑफ टिल एन टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स. नहीं, ये ध्यान रखना, ये डेफिनेशन बहुत बेसिक है. द सम ऑफ, it's important, the important keyword here is first.
फर्स्ट एंड टर्म्स कहीं से भी उठा के कहीं से भी मत जोड़ देना। सपोज करो 2 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ऐसा 2 + 3 + 4 करके ऐसा नहीं जोड़ देना, पहले से लेके लास्ट तक सबको ऐड करना है, फर्स्ट एंड टर्म्स। समझ में आया? अच्छा, ये समझ में आया क्या? इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, टी ऑफ एन को T1 + T2 + T3 + डैश 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 प्लस टी ऑफ एन। स्टेट में किसी को डाउट है क्या? करेक्ट। अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है तो एक और मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो इसको। इसमें यदि किसी को कोई डाउट है तो रेज योर हैंड। सिग्मा n = 1 to n t of n, ये क्या होता है? दिस इज s of n। डाउट है क्या किसी को, किसी बच्चे को कि सर ये क्या लिख दिया, ये क्या सिग्मा है, व्हाट इज दिस सिग्मा नोटेशन? इफ एनी स्टूडेंट हो हैविंग एनी डाउट इन दिस नोटेशन, प्लीज रेज योर हैंड। नहीं है? ओके, आई विल एक्सप्लेन अगेन, नो प्रॉब्लम। हाँ, ओके फाइन, आई विल एक्सप्लेन अगेन, आई विल एक्सप्लेन अगेन। देखो, टी ऑफ एन का मतलब क्या होता है? द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। इसका मतलब आपको पहली टर्म लेनी है, दूसरी टर्म लेनी है, तीसरी टर्म लेनी है, कहां तक जाना है? एन तक। you need to go till nth term, you need to go till nth term. Now this expression can be written as in this notation, this sigma. What is the meaning of this sigma? The sigma meaning is addition. Meaning of sigma is addition. Now from where to where? You have to go from n equal to 1, that is t1, to n equal to n, that is tn. And n is being integer here, remember. So when you put the n equal to 1 in this subscript, you'll get t1. When you put n equals to 2, you'll get t2. When you put n equal to 3, you get t3. Dash dash, when you put n is equal to n, you get tn. So this is what the definition of Sn. Sn का मतलब क्या होता है? सारी n टर्म को पहले से लेके लास्ट तक nth टर्म तक ऐड कर दो, उसी को ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। So the meaning of this expression, such large expression, and this small written in the compact form is same. Now anybody is having doubt? अभी किसी को डाउट है? अभी किसी को डाउट है? Then raise your hand कि सर सिग्मा और ये क्या लिख दिया, समझ में नहीं आया। नो डाउट? चलो, वेरी गुड। तो अच्छा गाइस, देखना ये समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। अभी एक और सिंबल है बेटा, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता, पाई ऑफ एन। इसका मतलब क्या होता है ना? इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। वो सम ऑफ एन टर्म था, इसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है, कैसे लिखोगे इसको? यू कैन राइट पाई ऑफ एन एस t1 into t2 into t3 dash 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 into t of n, or pi n starting from 1 going till n t of n। अभी इस बच्चे को इस नोटेशन में कोई डाउट है तो रेज योर हैंड। Yes, first n terms only. Yes, I'll come to that, Anant.
Any student having any doubt? Yes. हाँ, एक बच्चे ने डाउट पूछा कि सर ये जो वाला पाई है और जो सर्किल वाला पाई है, क्या ये दोनों सेम है? नहीं. This pi is a irrational number. This pi is a irrational number. This pi is a symbol. है ना? If you're getting confused, you can use P of n also. I have no problem. But focus on the definition. Definition is product of first n term. You can represent it with P of n. You can represent it with pi of n. It won't matter. But focus on the definition. What is the definition? Product of first n term. You can take it as P of n also. है ना? So pi of n is symbol. The circle वाला pi is an irrational number. तो कंफ्यूज मत हो जाना, है ना, कि सर ये पाई इंटू एन लिखा है. नो 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 नो, दिस इज पाई ऑफ एन. इन द सीक्वेंस ऑफ सीरीज चैप्टर द पाई ऑफ एन मींस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, है ना. वैसे भी आप देखोगे ना तो ऐसा बड़े लेटर में लिखता है, ये वाला पाई बहुत बड़ा लिखता है और जो सर्किल वाला पाई होता है वो छोटा लिखा जाता है ना. ये वाला पाई ऐसा बहुत बड़ा लिखता है, ऐसा लार्ज लिखता है. सर्किल वाला पाई वो थोड़ा छोटा लिखता है. अदरवाइज वो आपको मेंशन करेगा, ऐसा कंफ्यूज नहीं करेगा आपको. डोंट वरी. और किसी को डाउट? नहीं? हाँ चलेगा. चलो अभी नेक्स्ट. अच्छा आपको ये समझ में आता है क्या? देखो जरा फोकस करो, इतना तक सब आपको समझ में आ गया. वेरी गुड. अभी व्हाट डज द पाई डिनोट? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट पाई एन नंबर्स. बोल तो दिया बेटा, पाई इज अ सिंबल, यू यूज पी ऑफ एन. ठीक है. अच्छा ये समझ में आता है क्या? हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस? टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन. कितने बच्चों को जरा ये समझ में आया? जिसको समझ में नहीं आया रेज योर हैंड. सर क्या लिख दिया आपने? हाउ व्हाट यू रिटन? आई डिडंट अंडरस्टूड. चलो वेरी गुड. जिसको समझ में नहीं आया जरा एक ये देखो, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सम ऑफ, अभी दिखा हमने लर्न किया, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन टर्म्स. ठीक है. इसका मतलब क्या? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स. इसका मतलब क्या? सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन टर्म. तो ये एक्सप्रेशन ये बोल रहा है कि if you subtract the sum of first n minus one term from sum of n terms, you will get the nth term. If you subtract the sum of n minus one term from sum of n terms, you'll get the nth term. Let's take an example by number. Let's say this is the series 1, 2, 3, 4, 5. Let's say there are total 5 terms in the series. See if I ask you what is T5. So as per this formula, T5 is what? S5 minus S4. As per this formula, I kept 5 here, 5 here, 5 minus 1, 4. Fine. What is S5? S5 means the sum of all these 5 terms. So S5 would be what? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 bracket minus. No, you don't need to add. You don't need to add. They will be subtracted. And don't add them. Minus S4 would be what? S4 would be 1 plus S4 would be what? 1 plus, sorry, 1, not added, I'm telling you now, 1 plus 2 plus 3 plus 4.
That is the meaning of S4. Now this 1 and 1 minus, they will cancel out. 2 minus 2 will cancel out. 3 minus 3 will cancel out. 4 minus 4 will cancel out. You'll only remain with 5, which is true. T5 क्या है? 5 ही है, as you can see. Now any student is having any doubt in this, raise your hand. Yes. Yes, tell me, what part at which step you didn't understood? सर मतलब सर अभी फिफ्थ टर्म में सर a प्लस n माइनस वन इंटू डी भी तो एक फॉर्मूला है. मैं तो बेटा अभी एपीजीपी की बात कर ही नहीं रहा हूँ. अभी हमारी औकात ही नहीं है हम एपीजीपी की बात करें. अभी हम अच्छा. बेसिक सीख रहे हैं. हम ओके, एपीजीपी पे जाएंगे. ठीक है सर. समझ रहे हो ना? विल गो टू द हाँ एपीजीपी. अभी हमारी औकात ही नहीं है. अभी हम अपनी औकात बढ़ा रहे हैं सब. हाँ विल हाँ. लर्न द बेसिक्स. ओके, सीक्वेंस ना. हाँ, कि हम ये जो फॉर्मूले है ना बेटा, दे आर वैलिड टू एनी सीरीज. इट डजंट मैटर कि आप एपी ले रहे हो, जीपी ले रहे हो या कोई रैंडम सीरीज ले रहे हो. ओके सर. हाँ. ठीक है. ओके. तो हम सभी अभी मिलके वी आर ट्राइंग टू लर्न द वेरी बेसिक पार्ट्स. अभी इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो. Raise your hand. No doubt. Okay. Fine. अभी देखना ध्यान से. यदि आपको ये समझ में आया तो फिर आपको ये भी समझ में आएगा. जरा देखो जरा. If you understood this, तो ये समझ में आता है क्या? T of n is equals to pi of n divided by pi of n minus 1. समझ में आता है क्या ये? Any student जिसको ये समझ में नहीं आया, raise your hand कि सर नहीं समझ में आया, क्या लिख दिया ये? शर्विन. शर्विन गार्गी, बोलो बेटा क्या समझ में नहीं आया? What is the meaning of pi of n? जल्दी बताओ गार्गी. प्रोडक्ट हाँ तो बोलो ना. एक्सप्रेस करके क्या लिखूंगा मैं? ये लिखूंगा ना. 1 into t2 डैश डैश कहाँ तक जाऊंगा? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स. n नंबर नहीं, n टर्म्स. डेफिनेशन पे फोकस करो. मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ. ध्यान से लिखो सब चीज. क्या आएगा? इट वुड बी t of n. then what is pi of n minus 1? जल्दी बताओ. Tell. It would be t1 t2 up to where? Up to tn minus 1. tn, yeah. Now divide these two. You're dividing now. Divide these two. What will happen? T1 will T1 cancel out. T2 and T2 will cancel out. Here the Tn minus 1 and Tn minus will cancel out. Only thing that is remain would be Tn. Yeah. Any doubt now? Any No, student sir. has any doubt in this? Raise your No. hand. क्लियर? दोनों कंसेप्ट क्लियर हैं? बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर हैं? चलो तो अभी ध्यान से देखना. एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना. क्या होता है बेटा? इफ क्वेश्चन में s of n और pi of n is given, मतलब यदि सम या प्रोडक्ट गिवन है तो आपको t of n निकालना बहुत ही इजी पड़ता है. सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के निकाल लो. t of n क्या होगा? s of n minus s of n minus 1. और pi n के केस में क्या होगा? pi of n upon pi of n minus 1. बट ये उल्टा पार्ट जो है, दिस इज वेरी इजी.
है ना। ये जो है ये थोड़ा टफ पड़ता है ना। तो अभी हम ये पहला वाला पार्ट कि एस ऑफ एन गिवन है या पाई ऑफ गिवन है, तो आपको टी ऑफ एन कैसे निकालना है वो करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, द क्वेश्चन इज इफ एस ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 upon n plus 4, then you need to find the following, guys. Find the following things. First, you need to find the s of n minus 1. Second thing, you need to find t of n. Third, you need to write the first three terms, that is find t1, t2 and t3, and post the answer in the chat section. Yes, correct. Aniket. Piyush, correct. No problem. I'll repeat the question again. Question is if s of n is 1 upon n plus 4, then find s of n minus 1, t of n, t of 1, t of 2, t of 3. Excuse me. Soham. नहीं, रॉन्ग है सोहम। थर्ड वाला रॉन्ग है आपका, फर्स्ट वाला करेक्ट है। नो बेटा, सभी लोग फोकस करना, बेसिक डेफिनेशन है, बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैंने, एपीजीपी स्टार्ट किया ही नहीं अभी, इसलिए वो डेफिनेशंस की मीनिंग लिख लेना बार बार। नंबर ऑफ टर्म्स से क्या करना है, क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछे उन पे फोकस करो ना। कोई एपीजीपी थोड़ा है कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है। चलो, वेरी गुड। आए हैं आप लोगों के आंसर, बहुत कम लोगों के आए हैं। मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, फोकस हियर, ठीक है, पर बहुत ही कम लोगों के आए हैं, वेरी स्मॉल परसेंटेज स्टूडेंट्स गॉट इट। तो अभी एक चीज देखो ध्यान से, मेरे को क्या निकालना है, एस ऑफ एन माइनस 1। तो मैं यहाँ n की जगह क्या रिप्लेस करूंगा, n माइनस 1। आई विल रिप्लेस n विथ n माइनस 1 so that it gets n minus 1. So s of n minus 1 would be 1 upon, replace this n with n minus 1, that is n minus 1 plus 4, that is 1 upon n plus 3. Majority of the student got this. First answer, majority of the student got it. कोई डाउट? पहले क्वेश्चन में यदि डाउट है, फर्स्ट में, ओनली फर्स्ट, आई विल नॉट
आंसर सेकंड एंड थर्ड? फर्स्ट में यदि किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड. नो डाउट. चलो अभी देखना, मैं सेकंड का आंसर लिख रहा हूं, तो बताना मैक्सिमम कितने बच्चों का ये आया. यदि डिफरेंट आया है, ध्यान से सुनना मेरी बात, इफ द आंसर डिफरेंट आया है तो अपना हैंड रेज करना. ओनली रेज योर हैंड इफ द आंसर इज डिफरेंट. आई एम गोइंग टू राइट टी ऑफ एन बच्चों का आया होगा, सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं मैं, ठीक है. इट्स 1 माइनस n प्लस 3 ब्रैकेट n प्लस 4. यही आया होगा. कई बच्चों ने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम. सबका ये आया क्या? Did everybody got this? चलो वेरी गुड. ठीक है, अभी काइंडली फोकस. हाँ नहीं, सिद्धाक्षी रॉन्ग है. ठीक है गाइस, प्लीज फोकस हियर नाउ. जो भी सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, स्टॉप, प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन. एक चीज बताओ मेरे को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s of 2? टी ऑफ एन आपने निकाला होगा ना. टी ऑफ एन क्या निकालना था आपको? s of n माइनस s of n माइनस 1. यहाँ पे वैल्यू रख दो ना. s of n कितना है? 1 अपॉन n प्लस 4 माइनस 1 अपॉन n प्लस 3. एलसीएम लोगे तो यही आ जाएगा जो मैंने ऊपर लिखा है. इट्स बेसिक सब्ट्रैक्शन, नथिंग एल्स. ठीक है गाइस, नाउ प्लीज फोकस. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the value of s of 2? Very good. 1 by 6. Is 1 by 6 positive number or a negative number? Got it? Fine. अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन में आप n की कुछ भी वैल्यू डालो. n की आप कुछ भी वैल्यू डालो, 1 डालो, 2 डालो, आपको सभी टर्म पॉजिटिव मिलेंगे कि नेगेटिव मिलेंगे? ऊपर नेगेटिव है बेटा, ध्यान रखना. यहाँ पे n, यहाँ n, आप n की कोई भी वैल्यू डालो, टर्म तो बेटा पॉजिटिव रहेंगी ना. 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, you'll get all term negative. So how come this is that the terms are negative but the sum is coming at positive? ना, ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या हमने कोई मिस्टेक की है क्या? और यदि मिस्टेक की है तो कैन एनीवन पॉइंट आउट कि सर हाँ क्या मिस्टेक की है? कैन एनीवन पॉइंट आउट व्हाट मिस्टेक वी मेड? रेज योर हैंड. सारे टर्म नेगेटिव है बेटा, एक भी टर्म पॉजिटिव नहीं है, ध्यान रखना. बट उनका सम जो है वो पॉजिटिव आ रहा है. यस शेख, यू आर करेक्ट. शेख रयान करेक्ट. एनीवन एल्स? कैन एनीवन टेल मी कि हाँ ये कैसे पॉसिबल है कि सर आपने ये बेसिक मिस्टेक कर दी है? नहीं, देखो गाइस, फोकस हियर, ध्यान से देखना. अच्छा एक चीज बताओ मेरे को गाइस, व्हाट इज द मीनिंग? फोकस है ना, कंसेप्चुअल पे जाना, इसलिए मैं बहुत बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ s of 0? मीनिंग पूछा है मैंने. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ s of 0? मीनिंग पूछा है मैंने. वेरी गुड. द सम ऑफ फर्स्ट 0 टर्म्स, यही मीनिंग होगा. द मीनिंग ऑफ फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 0 टर्म्स.
तो द सम ऑफ फर्स्ट जीरो टर्म्स, इट मींस आप कोई भी टर्म ऐड नहीं कर रहे हो, आप कोई भी टर्म ऐड नहीं कर रहे हो। जब आप कोई भी टर्म ऐड नहीं करते हो तो आपको आंसर क्या मिलता है? जीरो। एवरीवन एग्रीज कि सर हमने कुछ भी ऐड नहीं किया तो आंसर क्या मिलेगा? जीरो। तो एज जीरो शुड बी जीरो एज पर आवर बेसिक डेफिनेशन। As zero will always be zero as per our conceptual definition. But when you put as zero over here, क्या वैल्यू आती है जरा देखो जरा। You'll put as zero is equal to 1 plus 0 plus 4. So as zero कितना जाता है? 1 by 4. as zero कितना आ गया? 1 by 4. बट हमारा कंसेप्चुअल क्या बोल रहा है कि as zero क्या आना चाहिए? 0. तो ये पॉइंट ऑफ नोट कर लो, करेक्ट ना? Kindly note it in the separate book that the value of as zero is always as zero, even if the formula says the otherwise, correct ना? So जो हमारा ये फॉर्मूला है, ये चीज ध्यान रखना, ये हमारा फॉर्मूला जो हमने लगाया अभी, t of n is equals to s of n minus s of n minus 1, ये कंडीशनल फॉर्मूला है, ये ऑलवेज नहीं लगेगा। कब लगेगा? इट विल ओनली बी अप्लाइड व्हेन यू आर फाइंडिंग टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दोनों का मतलब सेम है, करेक्ट ना? सो t ऑफ 2 क्या हो जाएगा? इट वुड बी s ऑफ 2 माइनस s ऑफ 1। t ऑफ 3 क्या हो जाएगा? इट वुड बी s ऑफ 3 माइनस s ऑफ 2। ग्रेटर देन 2 के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, बट व्हेन यू पुट t ऑफ 1 it becomes s of 1 minus s of 0. This by our conceptual definition has to be 0 even if the formula say otherwise. Remember this. This is 0 even if the formula says otherwise. So t1 becomes equals to s1, which is Sn कितना था हमारे क्वेश्चन में? Sn था 1 upon n plus 4. So t1 becomes 1 plus 4, that is 1 by 5. Understood? Now you want write t of n as single. आप tn का कोई मेरे को एक सिंगल आंसर नहीं देगा। यदि कोई बच्चा सिंगल आंसर दे रहा है तो गलत है, वो आंसर ऐसे ब्रेक करके देगा। क्या बोलेगा कि सर t of n is equals to 1 of 5, जब आप n की वैल्यू 1 लेते हो, फाइन, एंड t of n is equals to जो अभी आपने निकाला निकेत ने और सबने, 1 upon n plus 3 bracket n plus 4 when n is greater than equal to 2, और इसको ऐसा भी लिख सकते हो n is greater than 1, दोनों का मतलब सेम है। अंडरस्टूड? कोई भी पार्शियल आंसर देगा, इट इज रॉन्ग, यू हैव टू राइट बोथ द आंसर्स। एनी डाउट इन दिस? रेज योर हैंड। Yes, Shatakshi. Which part you didn't understood? बोलो बेटा। So the first one. Which one? This one? 1 by 5? Yes, sir. हाँ. So what is the meaning of t of n? मैंने क्या बोला आपको? t of n का फॉर्मूला क्या होता है? s of n minus s of n minus 1. Now tell me what would be t of 1? It would be, n would be s of 1, it would be minus s of 0. 1 minus 1. S of 0 will always be 0 even if the formula says otherwise. In our question the value of it is coming 1 by 4, but we will take it 0. So the value of t1 becomes equals to s1. So the t1 when you take n1 is equals to 1 by 5 s1, है ना? क्योंकि Sn कितना था? 1 upon n plus 5 था, 4 था। n की जगह क्या डालोगे? 1, तो ये कितना बन जाएगा? 1 by 5. So that become 1 by 5.
For rest of the problem we have no problem. उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, जो कि बहुत से बच्चों ने ये निकाला है. Any doubt in this? How can you put s of n minus 1 is equal to s of n minus n? No. नो डाउट ना. अभी सभी बच्चों को आंसर मिल गया कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सभी टर्म नेगेटिव आ रहे थे. अभी देखो पहला टर्म क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया ना. पहला टर्म पॉजिटिव है, बाकी टर्म सब नेगेटिव है, तो तब भी आंसर पॉजिटिव हो सकता है ना. If a first term is positive, rest are negative, still the answer can be positive because the first term may be larger than other terms. Understood? Next part क्या था मेरा कि T1, T2, T3 निकालना है. तो T1 तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 1/5. T2, T3 बेटा आप इस फॉर्मूले से निकाल लो. When you put T2, तो n की जगह आपको क्या प्लेस करना है? You have to substitute 2. When you substitute 2 here, you get 5, you get 6. So 5 into 6, that is 30. So the answer would be, first T1 would be 1/5, T2 would be minus 1/30, T3 would be minus 1/42. Any student and having any doubt in these three problems? That is, first मैंने s of n minus 1 निकलवाया, second मैंने वो निकलवाया. Raise your hand. Yes, Aniket. Yes, sir. Yeah, sir, when we put the value of T1 and the other terms, considering T1 as 1/5, so then the rest of the, for n greater equal to, even the S2, S3 and other sums are not satisfied. No, I didn't get. Give me an example what you're saying. Uh, uh, T1 is 1/5, T2 is minus 1/30. So T2 is equals to this, yes. S2 will be 1/6. S2 is 1/6. So if you add these two, you'll get 1/6. Yes, yes, sir, got it. Calculation mistake. Thank you, sir. Okay. Tn क्या आया था? Someone is asking me T2 कैसे आया? Tn क्या आया था? Tn ही आया था बेटा. Did everybody got this? Sherwin, this is what Tn. So for n equal to 2, this will become what? 5. This will become what? 6. 5 into 6 is 30. So minus here hai, so minus 1/30. For rest of the terms, use this simple formula. There's nothing more into it. Fine? Okay. I'll give you the next sum. Mayuresh, what are you saying? Why can't we put what? S of n minus 1. No, I didn't get you. S of n, n कहाँ से आया आपका मयूरेश? Raise your hand, मयूरेश. Mayuresh, raise your hand. What are we saying and where does it coming from? Yes, Mayuresh. S of n is equals to what? Sir, I'm asking you, why can't we put Sn minus 1 is equal to Sn minus n? Slowly, go slowly. Why can't we put Sn Minus 1 S of n minus 1, okay, is equals to is equals to Sn minus n. Sn minus n. Yes. ये क्या होगा? This would be S of 0. No, sir, no, sir. Hello. हाँ, Sir, Sn term is separate and n term is separate. Sn minus n. ये. Yes. हाँ, तो ये कैसे लिखोगे आप? इसका मतलब होता है sum of first n term. इसका मतलब है sum of first n minus 1 term. तो ये हमेशा n के इक्वल होगा क्या? आप ये बोल रहे हो कि सर n is always equal to
S of n minus S of n minus 1. तो लास्ट टर्म हमेशा n होगी क्या? n स्क्वायर भी तो हो सकती है, 2n plus 1 भी तो कुछ हो सकता है. Okay, sir. चलो नेक्स्ट सम. ध्यान से क्वेश्चन लिखिएगा. It's a tricky question. Now let me see. If S of n is equals to n plus 5, fine. Then you need to find the following. Question number first. What is the value of t of n? Question number second. What is the value of pi of 3? Question number 3. What is the value of S of 5? Question number 4. What is the value of pi 7295? So, फटाफट solve करो and post your answer in the chat section. And now wrong. No, wrong. Guys, do not make the same mistake. See, मैंने last sum कैसे किया था? If you are making the same mistake, but means you're not learning from your mistake. No. Write the answer जैसे मैंने लिख के दिया है. If you have written, हाँ, so this is the correct way. So perfect. So your first answer is perfect. Yes, Aniket, correct. Now you have to write in this way only. If you're giving me part answer, I won't accept. No, Shatakshi, wrong. No, Aniket, wrong. Focus on the basic definition, guys. Forget about APGP. These are very basic things. Shravan, always. So why are you giving a part answer? I have told you now in the last section, if you are giving me the part answer, I won't accept it. Yes, Pranay, correct. Write the limit also, na? Correct, Arnav. Rana, solve it ना. Simplify करो ना उसको, Rana. विजुअल क्या मिस्टेक कर रहे हो? बेसिक बिल्कुल बच्चों वाली. पहला पार्ट सही है, दूसरा रॉन्ग है. S1 पूछा कहाँ मैंने? S1 पूछा ही नहीं है. मैंने S5 पूछा है. No, no, wrong. नमन पूरा आंसर दो. पार्शियल आंसर आई वांट एक्सेप्ट. मैं पहले बोल चुका हूं. यस, फोर्थ आंसर करेक्ट. अनाउ. सो हम करेक्ट सेकंड. Yes, correct, Aniket. Third one.
राना और सिंप्लीफाई करो ना, उसको और सिंप्लीफाई होगा वो। यस, शेख रायहान करेक्ट। मैथ्यू, कंडीशन भी तो लगाओ मैथ्यू। You not apply the conditions, you simply given the answers. No, wrong राना। चलो कुछ बच्चों को तो आया है, हैप्पी है ना। इन बच्चों जो अभी भी कंसेप्ट नहीं पकड़ पा रहे हैं, प्लीज फोकस हियर, है ना। मैं एक क्वेश्चन एरेज कर रहा हूँ एंड आई विल स्टार्ट सॉल्विंग। देखो सबसे पहले उसने क्या दिया है, उसने बोला है s ऑफ n इज इक्वल्स टू n प्लस 5। तो ये बताओ मेरे को s ऑफ n माइनस 1 कितना होगा। इस n की जगह मैं n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इट वुड बी n माइनस 1 प्लस 5, दैट इज n प्लस 4। अभी मैंने आपको क्या बताया था, t ऑफ n जो है वो दो कब क्या होता है, इट इज एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस 1। बट ये हमेशा होता है क्या, नहीं, ये कब होता है, व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होता है, t ऑफ 1 इज इक्वल्स टू s ऑफ 1। तो s ऑफ 1 इससे निकालो, t ऑफ 1 इज इक्वल टू s ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। ये s ऑफ 1 के लिए आ गया। नाउ फॉर t ऑफ n, इसके लिए फॉर ग्रेटर देन 2 के लिए आप क्या डालोगे, ये वैल्यू डालोगे, दैट इज n प्लस 5 माइनस n प्लस 4। बहुत से बच्चों ने सिर्फ ये आंसर करके दे दिया, इसको और सिंप्लीफाई करो ना, n से n कट जाएगा, 5 से 4 कट जाएगा 1। तो आंसर कैसे लिखूंगा मैं, आंसर ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखना। ये बहुत से बच्चों ने ऐसे लिख के नहीं दिया, आपको ऐसे लिख के देना है, t of n is equal to 6 when n is equals to 1 and for n greater than 1 it is 1। इस सीरीज की शक्ल कैसे दिखेगी जरा देखो, ये सीरीज बेटा ऐसी बनेगी 6 1 1 1 1 1 1 डैश डैश डैश, ऐसे दिखेगी ये सीरीज। कोई डाउट है, नहीं ना। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या था, पाई 3। पाई 3 का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। सो 6 फर्स्ट टर्म, 1 सेकंड टर्म, 3rd उस टर्म। तो 6 इंटू 1 इंटू 1 6। व्हाट इज S5? S5 तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हो, n प्लस 5 फॉर्मूला है ना, तो डाल दो 5 प्लस 5 10। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इनका 5 S5 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। ऐड करो जरा, 6 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गई 5 टर्म, तब भी 10 आएगा। यू कैन फाइंड S5 इन बोथ बेस। फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई ऑफ 7295। इट इज 6, पहली टर्म 6 है, बाकी सब 1 है, डजंट मैटर 6। Any doubt in any solution? Any doubt in any solution? Raise your hand. Yes, Anirudh. सर वो 6 से T1 आया तो उसके बाद में ऐसा 1 कैसे आया सर, वो नहीं थी। कौन सा 1 कैसे आया, मतलब 6 और उसके बाद में 1 1 1 1 पूरा चल रहा है सर, वो कैसे। क्यों बेटा, क्या सीरीज है, T ऑफ n निकालना है ना आपको। हाँ सर। T ऑफ n का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बताओ सर T ऑफ n का बेसिक पूछा बेटा, मैंने क्लास वहीं से स्टार्ट की थी, आपको स्टेटमेंट लिख के 1000 बार पूछा था, ये समझ में आया क्या। T1 T2 डैश डैश Tn। नहीं, T ऑफ n इज इक्वल टू S ऑफ n माइनस S ऑफ n माइनस 1। यस सर। व्हाट इज S ऑफ n?
सर n+5 n+5, वेरी गुड, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट क्या आएगा? सर n+4 n+4, सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा? ओके ओके सर 1। अभी आप n की कोई भी वैल्यू डाल दो ग्रेटर देन 1, आपको ऑलवेज 1 मिलने वाला है, तो वही तो Yes. लिखा है। यस सर ओके Any student having any doubt in this? No? चलो अभी देखना, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और ट्विस्ट करता हूं ना। लेट मी ट्विस्ट दिस क्वेश्चन, ध्यान से समझना। अब मैं बोल रहा हूं कि सीरीज यही है, बस मैंने एक थोड़ा सा माइनर चेंज कर दिया। मैं बोल रहा हूं इस सीरीज की 7th टर्म को, 7th टर्म 1 है ना, मैंने उसको 1 की जगह 0 रिप्लेस कर दिया है ना। 1 की जगह मैंने क्या ले लिया? 0। ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, 7 टर्म, और फिर 8 टर्म सब 1 बनाएंगी। मैंने सिर्फ इस नंबर को 1 को 0 से रिप्लेस कर दिया। आई ओनली रिप्लेस दिस 1 विथ 0। नाउ क्वेश्चन, listen question carefully. You have to write what is t of n. You have to write the new t of n. You have to write the new s of n. And third, you have to write the new pi of n. आंसर पार्शियल कोई भी बच्चा नहीं देगा, पार्शियल दे रहा है तो वो बिल्कुल भी नहीं सीख रहा है। Question is, this is the series. Can you see the series? The series is 6 1 1 1 1 1. Fine. I replace the 7th term of this series, that is 1, with 0. Now you need to tell me what will be the new t of n, what will be the new pi of n, what would be the new s of n. Yes, first answer came. Let me see. एक पार्ट भूल गए अनिकेत आप? अनव, correct. Anav, correct. Yes, that's what Aniket, that's what you forgot it. हाँ, Aryan. Correct, Aryan Chaudhary. सूर्या आपने क्या लिखा है? सम क्या लिखा है आपने? मेंशन करो कौन सा क्वेश्चन है। फर्स्ट का आंसर लिखा है, सेकंड का आंसर लिखा है? करेक्ट है निकेत, बट सेकंड पार्ट भी तो लिखो। फर्स्ट पार्ट आपने जो लिखा है, एस ऑफ एन को आपने कितने पार्ट में ब्रेक करा पहले ये बताओ। एक पार्ट आपका सही है, बाकी का पार्ट का आंसर बताओ। 3 पार्ट में, तो मेरे को तो सिर्फ एक पार्ट का सही दिख रहा है, दूसरे पार्ट का ठीक है, तीसरे पार्ट का नहीं दिखा मेरे को। नाउ थर्ड का आंसर आपने क्या दिया बेटा? क्वेश्चन थर्ड, यस, परफेक्ट, थर्ड इज परफेक्ट, करेक्ट।
Yes, correct, Aniket. Second part. Shravan. Correct. Correct, Aniket. Second part. Perfectly, Aryan, correct. n greater than 6 आएगा कि 7 आएगा आर्यन? आर्यन correct, Vedant. So many of you are getting the basics. Correct. चलो अभी देखो, है ना, जिनको आ गया वेल एंड गुड बेटा, जिनको नहीं आया प्लीज फोकस हियर. मैं बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन ही अप्लाई करूंगा और कुछ नहीं करूंगा. ठीक है, अभी देखना, मैं दोनों सीरीज लिख देता हूं जिससे मैं ऊपर इरेज करके दोनों सीरीज लिख देता हूं. 6, लेट मी टेक डिफरेंट कलर. 6 1 1 1 1 1 1 1 डैश डैश डैश. 7 टर्म क्या आएगी? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म. दिस इज द 7 टर्म. This is the 7 term. I'm replacing this with 0. Fine. So, abhi, what was the first question? The first question is you need to write the T of n. ठीक है, तो जो मेरा T of n का ओरिजिनल फॉर्मूला था, क्या आया था मेरा T of n? T of n क्या था मेरा? वो यहां तक तो वैलिड रहेगा ना, इसके बाद ही चेंज होगा. तो मैं इसको ऐसा ब्रेक करके लिख लेता हूं. दैट इट इज n इक्वल टू 1 के लिए तो 6 है, वो तो पता वैलिड है ना. फॉर n इक्वल टू 7 के लिए ये 0 है ना, ये 0 है n इक्वल टू 7, क्योंकि मैंने 0 रिप्लेस किया है. और बाकी अब जो भी बचा, दैट इज n ग्रेटर देन 2 एंड n इज नॉट इक्वल टू 7 के लिए 1 है ना. इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, ये सारी टर्म क्या है? 1 है. तो फॉर n ग्रेटर देन 1 and not equal to 7, it is 1. For n equal to 7, it is 0. For n equal to 1, it is 6. अभी इस पहले वाले में यदि किसी को डाउट है पार्ट आंसर, तो रेज योर हैंड. Anyone having any doubt in this part answer, raise your hand. तीनों पार्ट समझ में आए मैंने किस तरीके से ब्रेक करके लिखा है? Yes, Naman. Tell me which step you didn't understood. Naman. नमन भाटिया. हेलो. हाँ, सर मेरे को सेकंड पार्ट नहीं समझ आया. सेकंड पार्ट में क्या समझ में नहीं आया? बोले को बोलो जरा, कौन सा वाला? लेट मी सी. सर मेरे को ये समझ आया n1 कैसे आया, n7 नहीं आया. 7, ये सेवेंथ टर्म है ना. हाँ फॉर सर. n इक्वल टू 7, व्हाट इज द वैल्यू? 0. तो ये तो लिखा मैंने, फॉर n इक्वल टू 7 इट इज हाँ 0. तो सर इसकी डिफरेंट वैल्यूज होगी हर इसके लिए. हाँ, तभी ओके. तो मैं स्टार्टिंग से चलता आ रहा हूँ कि t ऑफ n एक आंसर नहीं देगा, पार्ट में ब्रेक होगा. राइट फ्रॉम द फर्स्ट टर्म आई एम टेलिंग, फर्स्ट सम पहले से जो मैंने लिया. एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है? s ऑफ n. ठीक है, अभी s ऑफ n ध्यान रखना. एक चीज बताओ मेरे को, अगेन हमारा s ऑफ n के फॉर्मूले में टिल 7th टिल 6th टर्म तक कोई चेंज आने वाला है क्या? टिल 6th टर्म, क्योंकि हमने सिर्फ 7 टर्म से छेड़छाड़ की है, कोई चेंज नहीं आने वाला.
तो एसएन टर्म को मैं ऐसा ब्रेक करके लिख देता हूँ कि अप टू लेस देन 7, 7 इंक्लूडेड नहीं है। आंसर क्या है आपका पुराना वाला, दैट इज n+5। इस स्टेटमेंट में किसी को डाउट है तो बोलो। यस, रेज योर हैंड। जिसको डाउट है हाथ रेज करो बेटा। यस, यथर्थ। Sir, I have a doubt in the previous one, sir. हाँ बोलो। Sir, जब n7 रहेगा, sir हाँ तो t of n की वैल्यू s of 7 minus s of 6 होगा ना? हाँ रुको, ये 0 Sir, है। हाँ, तो t sir ऑफ n n जो है, n वो की जगह s आपने of क्या लिया 7, तो हाँ t ऑफ 7। हाँ, minus t of 6 होगा। t Sir, ऑफ n, n की जगह आपने 7 डाला तो t ऑफ 7 आ गया। हाँ, अब इसकी वैल्यू आप किससे निकालना चाहते हो? नहीं sir, t of n is equal to s of n minus s of n minus 1। अच्छा, उस फॉर्मूला का यूज करके आप निकालना चाहते हो, ठीक है। हाँ sir। तो t ऑफ n इज इक्वल्स टू s ऑफ n माइनस s ऑफ n माइनस 1, ठीक है। सर तो देन ये s of 7 minus s of 6 हो जाएगा ना? s ऑफ 7 माइनस s ऑफ 6 हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, तो फिर इसमें फिर जीरो कैसे आएगा सर? इसमें जो आप n is equal to 7 में s ऑफ 7 की वैल्यू कितनी है? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स की वैल्यू कितनी है? ये सर, हाँ सर समझा, सॉरी सर, मिस्टेक। ठीक है, अभी ये वाला पार्ट, अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्या है, एक चीज बताओ मेरे को ध्यान से समझना। इसके आगे वाली जो टर्म है, इसके जो आगे वाली टर्म है, उसमें से मैंने ये टर्म डिलीट कर दिए ना, 1, 1 की जगह मैंने क्या रखा है 0। मतलब इस टर्म का जो सम में कंट्रीब्यूशन था, इस टर्म का सम में कितना कंट्रीब्यूशन था 1, वो हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये टर्म पूरे सम में क्या कंट्रीब्यूट करती थी 1, क्योंकि ये टर्म 1 थी, तो इसका कंट्रीब्यूशन माइनस कर दो पूरे सम में से। पूरा सम क्या है n+5, 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा n+4। So for n greater than equal to 7, it is n+4. कोई डाउट है तो बोलो, raise your hand. No doubt. Last वाला, pi of n. pi of n भी क्या होगा? ये तो बहुत इजी है, यहां तक तो 6 होने वाला है, यहां तक तो 6 होने वाला है। इट मींस फॉर n लेस देन 7 इट इज 6, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 7 इट इज 0, क्योंकि 0 आ गया। तो पाई ऑफ 0 को सिर्फ 0 मत बोल देना, पाई ऑफ n को। अंडरस्टूड? चलो, we'll take the one more sum. ध्यान से देखना। अभी क्वेश्चन है पाई ऑफ n is equals to n+5. Then you need to find the value of t1, t2, t3. Second, you need to find the value of s1, s2. चलो करो, जो भी कंसेप्ट पहले सीखे हैं उनको रिवाइज करके आंसर देना। टी ऑफ 1 करेक्ट है अनिकेत? टी ऑफ 2 भी करेक्ट है। यस राना, करेक्ट है। टी ऑफ 3 नहीं।
अच्छा, जो बच्चे पहले क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करे हैं, एक चीज बस मेरे को बता दो, है ना? अभी जस्ट फोकस, ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट बंद करो बेटा। एक बताओ, एस ऑफ जीरो का मतलब क्या होता था, जल्दी बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस ऑफ जीरो? द मीनिंग पूछ रहा हूँ, वैल्यू नहीं पूछ रहा। नो सम। सो व्हेन यू ऐड नथिंग यू गेट जीरो। तो मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई ऑफ जीरो? हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट जीरो टर्म्स। वेरी गुड, है ना? द पाई ऑफ जीरो मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट जीरो टर्म। अच्छा, अब बताओ, आप मेरे को किसी भी नंबर को कुछ भी किसी से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आंसर क्या आएगा? इफ यू मल्टीप्लाई नथिंग, व्हाट विल यू गेट? 1। व्हेन यू मल्टीप्लाई नथिंग यू गेट 1, है ना? यहाँ पे कंसेप्ट है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। When you add nothing, you get 0. That is additive identity. 5 है, 5 में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया या 0 ऐड किया तो आंसर तो 5 ही आता है ना? कुछ भी नहीं ऐड किया, 0 ऐड किया, एक ही बात है, तो कुछ भी नहीं को मैंने 0 बोल दिया। सिमिलरली 5 है, 5 में मैंने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया, 5 में मैंने 1 मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी आंसर 1 आ रहा है। तो कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई को मैंने क्या बोल दिया? 1। तो पाई ऑफ जीरो जो है वो 1 होता है। एस ऑफ जीरो जो है वो 0 होता है। इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अंडरस्टूड? तो पाई ऑफ जीरो बेटा 1 लेना। अभी जो मिस्टेक मत करना, बहुत से बच्चे मिस्टेक कर रहे थे। यस, फिर शताक्षी सेम मिस्टेक करी आपने मेरे एक्सप्लेन करने के बाद भी। टी ऑफ 1 क्या आपने क्या मिस्टेक करी, चेक करो जरा टी ऑफ 1 में। सेम मिस्टेक आर्यन कर रहा है। क्या बोला मैंने बेटा? अनिकेत, आपके तीनों आंसर सही है। 48/7 थोड़ा आएगा, 8/7 आएगा। Yes, Karthik. Again, you made the same mistake. Yes, Ronit, correct. First one is correct. Akansha, same mistake. Soham, your all answer are correct. Yes, Vedant, your all first के आपके तीनों आंसर करेक्ट हैं। Surya, no. Only first correct, second and third wrong. Correct है Sharvin Joshi, third. When n is greater than 1, Naman, not 0. T2 सही है रोनित, सही है राणा। Yes, now you are correct, Shatakshi. Because pi of 0 is 1. T3 correct है राणा। पीयूष करेक्ट है। करेक्ट है रोनित। T2 निकालो शताक्षी, क्या है T2? नमन, T2 आपका सही है। मयूरेश, T1, T2, T3 करेक्ट। शेख रैन ऑल करेक्ट। शताक्षी करेक्ट, शशांक करेक्ट, नमन करेक्ट, राणा करेक्ट,
शर्विन जोशी, रॉन्ग है बेटा आपका, फिर सेम मिस्टेक कर रहे हो। क्यों बार बार सेम क्वेश्चन में मिस्टेक रिपीट कर रहे हो? हाँ वेदांत, S2 आपका रॉन्ग है, S1 सही है। यस राणा करेक्ट। कार्तिक करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। मयूरेश करेक्ट है। नो, ध्रुव केजरीवाल रॉन्ग है। सदाक्षी करेक्ट है बेटा, आपके दोनों करेक्ट हैं। तो सिर्फ आपका जो पहला वाला था वो थोड़ा आपने मिस्टेक की थी, वो करेक्ट कर लिया आपने, बाकी सब सही थे आपके। हाँ रोनित करेक्ट है। पीयूष करेक्ट है। सूर्य करेक्ट है। नो, ध्रुव रॉन्ग है। नमन रॉन्ग है। गार्गी, शेख रायन करेक्ट है आपके दोनों। मयूरेश करेक्ट है, वेरी गुड। अच्छा है राणा, सही बात, सही बोल रहे हैं। हाँ करेक्ट है रोनित। गार्गी आपके आंसर्स ही नहीं दिख रहे हैं मेरे को, लिखो, कॉपी करके फिर से पेस्ट कर दो और क्या। पीयूष करेक्ट है। अर्णव का फर्स्ट, हाँ अर्णव आपके सारे सारे आंसर्स करेक्ट है। अर्णव, अर्णव अग्रवाल। गार्गी नहीं बेटा, आपने सेम मिस्टेक करी है, मैंने बोला ना आपको, पाई ऑफ 0 1 होता है, आपने 5 लिया है। सेकंड वाले भी रॉन्ग है आपके। अर्चित करेक्ट है। चलो, मेजोरिटी ऑफ यू गॉट करेक्ट, करेक्ट ना? दिस टाइम obviously the percentage of the student who got it, मतलब understood the basic concepts is correct. तो अभी देखना, एक मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा हूं, है ना, मैं एक्सप्लेन कर दूं इसको। लेट मी एक्सप्लेन दिस। क्या आएगा? व्हाट इज टी ऑफ एन? टी ऑफ एन इज पाई ऑफ एन डिवाइडेड बाय पाई ऑफ एन माइनस वन। इज दिस फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड? है ना? यस, इफ यू टेक द वैल्यू ऑफ दिस फॉर 1 पाई ऑफ 0 के लिए। तो टी ऑफ 1 क्या आएगा? टी ऑफ 1 वुड भी आएगा पाई ऑफ 2 अपॉन पाई ऑफ 0। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पाई ऑफ 0 इज 1, पाई ऑफ 2 की वैल्यू यहां से निकाल लो, है ना? तो टी ऑफ 1 ये क्या हो जाएगा? 1 आएगा, सॉरी, ये 6 हो जाएगा। तो टी ऑफ 1 इज 6। फिर टी ऑफ 2 के लिए तो सिंपल फॉर्मूला क्या आएगा? पाई ऑफ 2 डिवाइडेड बाय पाई ऑफ 1। ठीक है, तो पाई ऑफ 2 कितना आएगा? पाई ऑफ 2 में यहाँ पे 2 डालोगे, दैट इज 7। पाई ऑफ 1 7 बाय 6। अगेन टी ऑफ 3 कितना आएगा? यहाँ पे 3 डालोगे, है ना, तो पाई ऑफ 3 डिवाइडेड बाय पाई ऑफ 2। 3 डालोगे कितना आएगा? 8 बाय 7। विच मेजॉरिटी ऑफ यू गॉट इट ना? S1 मैंने क्या बताया था? ऑलवेज T1 से निकालना है। T1 आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, इट इज 6। S2 क्या होगा? एज पर डेफिनेशन T1 प्लस T2। T1 आप निकाल चुके हो 6, T2 आपको पता है 7 बाय 6, दोनों को ऐड कर दो, आपको 43 बाय 6 मिल जाएगा। विच मेजॉरिटी ऑफ यू गॉट इट? ठीक है, अच्छा मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनना, टाइम नहीं बचा है क्योंकि 2 मिनट बचे हैं। ये ट्रू है कि फॉल्स ये बताना, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट यहीं से शुरू करूंगा नेक्स्ट क्लास। ध्यान से सुनो, ये ट्रू है कि फॉल्स। For a series of natural number, a factorial can be defined as pi of n. For series of natural number, factorial can be defined as pi of n. Yes, Satakshi. For the series of, so its statement is true, क्योंकि pi of n का मतलब क्या होता है? The product of first n terms. तो वही तो फैक्टोरियल होता है।
है ना, वही तो प्रोडक्ट होता है। तो मैंने पाई ऑफ एन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो मैंने नेचुरल आपको टर्म बता दिए, नेचुरल नंबर्स हैं। सो पाई ऑफ एन इज फैक्टोरियल एन ओनली फॉर सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर। ध्यान रखना, ये हर किसी के लिए मत लगा देना कि सर आपने बताया था पाई ऑफ एन फैक्टोरियल एन होता है। सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर, कौन सी सीरीज? ये वाली सीरीज। सीरीज मैंने डिफाइन कर दी है 1 2 3 4, ये सीरीज है, उसका पाई ऑफ एन फैक्टोरियल एन होता है, हर किसी का नहीं होता। सपोज करो आपने ये 2 4 6, इस सीरीज के पाई ऑफ एन को एच फैक्टोरियल एन मत लिख देना, पता चले इसको फैक्टोरियल एन लिख गए। नहीं भाई, इसको सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर पाई ऑफ एन इज फैक्टोरियल एन। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो। सो आई लीव दिस ईयर, क्योंकि मेरे को बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन लेने हैं, मैं लूंगा। ठीक है, तो 9 बज गए ऑलरेडी, तो मैं बाकी यहीं से कंटिन्यू करूंगा। तो प्लीज रिवाइज, है ना, और गेम भी खेल लेना, है ना। थैंक यू गाइस फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन, कीप लर्निंग एंड टेक केयर। थैंक यू। आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग नाउ।